हाँ। और आप ओईटी वगैरह प्रिपेयर कर रहे थे इससे पहले, या क्या क्या आपका? अभी कर ही रहा हूँ, हाल ही में चल रहा है अभी। अच्छा, कोई कोचिंग वगैरह ज्वाइन किया है या आप ऐसे ही हम्म, सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो? नहीं नहीं, कमल एकेडमी से कर रहा हूँ। ओके। तो मैं अभी टाइमर सेट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? मैं पहला स्पीकिंग है आपके साथ। हम्म। मैं टाइमर के साथ अभी नहीं खेलना चाहता हूँ, ठीक है? आप जब भी रेडी हो आप अपना स्पीकिंग चालू कर सकते हो, ठीक है? हाय, गुड इवनिंग। हेलो, गुड इवनिंग। My name is Ankit, and I am a registered nurse working in this hospital. For the documentation purpose, could you please tell me your name and age? Yes, my name is Akhil and I am 42 years old. Okay, thank you, Akhil. And could I know the reason behind your visit? Oh, actually, I am admitted in this ward because I have been diagnosed with gastritis, and that is the reason I am here. मिस्टेक हो गया एक बार। मैं क्या रिपीट कर सकता हूँ Go इसको? ahead. No, 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 no. Go ahead. Don't worry about mistakes. ओके ओके ओके। And for the document, sorry, and you have admitted here due to your gastritis problem. Am I right? Yes, you are. Okay. Thank you for giving me this information. And nurse and Akhil, could you please tell me your family background? Yes, I live with my wife, and she's 36-year old, and I also have three teenage children living at home. Okay. And what is about your habits? What habits would you like to ask? Like your food habits, your smoking and drinking habits. Okay. So, food wise, I take a healthy food. Okay. Okay. And I don't drink. Sorry, I don't smoke, but I drink. Uh, I think I will drink every day. Okay. So you drink every day. Oh, yes. Okay. Thank you. And could you please tell me about your general health? Because of, drinking too much of alcohol, I have the, abdominal upset or pain most of the time. Okay. Okay. Thank you. And do you have any other concern? No, I was just wondering, like, whether it will be how I can, quit the smoking or quit the drinking habit. Please, if you can help me with that. Yeah. So happy to hear that you want to quit the drinking habit. Am I right? Yes. Okay. Then I would like to suggest you some distractions. Have distraction uh, ideas so that you can reduce your drinking habit, and some distraction techniques so that you can reduce your craving. Are you getting me? Yes. Okay. And what are those? You can use some uh, you can go outside when you feel that you are craving for drinking. So at that time you can go outside for distract your mind, and you can do some other activity like play the games and other activities so that you can distract your mind and reduce your craving. Are you getting me? Yeah. I will try to do that. Yeah. So that you can lower your alcohol consumption. Hmm. And yeah, But and you, do you think yeah. is this the only thing apart from distractions? Is there anything else I can do? Because I think I have tried all these and I have never succeeded. So, is there any other advice which you want to give to me specifically about drinking, please? Yes. There are other advice like you can use some medication that will the doctor will be prescribe you.
I will book the appointment of your with the doctor, so that you can uh, consult with them, and you can use some type of medicine, so that you can reduce your habit of drinking. And there are some also psychological uh, advices. You can take this from your psychiatric doctor, so that you can reduce your habit. Okay. And is that all? Yes, yes, Okay, I'll try to do that. yes. And do you have any other concern? No, thank you. Okay, thank you. ओके अंकित जी, क्या लग रहा है? बताओ क्या लग रहा है? मुंडी हिलाने से काम नहीं चलेगा। बहुत ही बुरा लग रहा है सर। कुछ है ही नहीं, कुछ बोला ही नहीं गया। हम्म, जीरो लेवल अभी तो। मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा प्रिपरेशन का जरूरत पड़ेगा आपको। ठीक है, बिल्कुल। आप एक ऐसे कैंडिडेट लग रहे हो मुझे जो पास तो हो सकता है जरूर, ठीक है, लेकिन उसके लिए जमीन आसमान आपको एक करना पड़ेगा। मेहनत, बहुत लोग बस हैं, बस। बहुत लोग हैं कि मुझे पता है कि नहीं कर पाएंगे। टू बी ऑनेस्ट मैं बता देता हूं, मैं बात करके समझ जाता हूं कि किसके लायक है। देखो ओईटी भी सबसे नहीं होगा, होता होता तो सब कोई का हो जाता ना, इतना आसानी अगर होता तो सबका हो जाता। अब मुझे बात करके ही समझ में आ जाएगा 10-15 मिनट में कि भाई हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। उनके बात करने के तरीके में, एटलीस्ट कोशिश करने के तरीके में भी मुझे बहुत कुछ समझ में आ जाता है, क्योंकि मैं तो इतने सालों से पढ़ा रहा हूं, इतने लोगों को देखा है मैंने, तो मुझे पता है इसके बारे में। तो आपको देख के मुझे लगता है कि आप कर तो लोगे, लेकिन उसके लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। जी सर, बिल्कुल। तो मेहनत के बिना तो। हाँ, तो मैं बोलूंगा कि आप काफी कैजुअल हो ओईटी को लेके, क्योंकि आप जैसे बात कर रहे हो वो एक प्रोफेशनल वे ऑफ टॉकिंग नहीं है। ठीक है, आपने जैसे ही शुरुआती किया हाई बोल के शुरुआत किया। आप जब एक ओईटी स्पीकिंग कर रहे हो, एक प्रोफेशनल स्पीकिंग कर रहे हो, तो आप हाई नहीं बोल सकते हो, आपको बोलना है हेलो। ओके सर। हाई हम कैजुअली दोस्तों लोग के साथ बोलते हैं हाई, लेकिन आप एक जब पेशेंट के ओके साथ सर। बात कर सकते हो, जब बात कर रहे हो तो आपको हाई नहीं यूज कर सकते हो आप। आपको बोलना है हेलो, गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून, जो भी है आपको हेलो यूज करना है। ओके सर। ठीक है, उसके बाद आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, विच इज गुड, अच्छी बात है, आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद आपने पूछा कि मेरा विजिट का रीजन क्या है, यहाँ तो मैं वो एडमिटेड भी। हूँ। हाँ हाँ, बिल्कुल। वो मतलब माइंड से स्टक के हो गया, वो समझ ही नहीं आया, मतलब वो मतलब हेजिटेशन थी ना, वो बस यही हो गया काम। आपको मैंने ऑलमोस्ट 10-15 मिनट दिया प्रिपरेशन करने के लिए। ठीक है, उसके बाद देखो वहां पे आपको मात्र मैंने लिखी तीन थी मिनट ये मुझे वाली। पता है, मात्र हाँ, आपको 3 मिनट मिलेगा, मात्र 3 मिनट। बिल्कुल बिल्कुल। उस 3 मिनट आपका ये पढ़ते पढ़ते आपका 3 मिनट निकल जाएगा। ठीक है, हम्म। सोचो उस सिचुएशन में आप कितना गलती करोगे। मैं आपको एक्स्ट्रा टाइम देके कर रहा हूं, तो मैं यहाँ पे आया नहीं हूं, मैं यहाँ पे एडमिटेड हूं। मैं आया जरूर हूँ हॉस्पिटल में, लेकिन मैं एडमिट। एडमिटेड हूं। आप बिल्कुल। विजिट की बातें कहां पे करोगे जब सेटिंग क्लिनिक हो, यहाँ पे हाँ। सेटिंग हॉस्पिटल का हॉस्पिटल। वार्ड है। हम्म। तो आप क्लिनिक के बारे का, विजिट के बारे में तो नहीं पूछ सकते हो। ठीक है, जैसे बिल्कुल। और उसके बाद आप एक ही इंफॉर्मेशन को बहुत बार रिपीट कर रहे हो। जैसे मैंने बोल दिया कि मैं गैस्ट्राइटिस से आया हूं, तो आप फिर क्यों पूछ रहे हो, ओ आर यू हियर विद गेट, सो यू आर हियर विद गैस्ट्राइटिस, एम आई राइट? मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया ना एक बार। तो मैंने जब आपको एक जैसे आप मुझे बोल रहे हो कुछ कि हम्म। मेरा नाम अंकित है, वो आपका नाम अंकित है, मैं सही बोल रहा हूं? तो ये आपको ठीक लगेगा? अगर आपको ऐसा कोई बोलेगा तो आप जस्ट बोल के खत्म किए हो, और आप बोल रहे हो, हम्म। मैं अब आपसे आपसे पूछ रहा हूँ, ओ अच्छा आपका नाम अंकित है, तो आप बोलोगे अभी तो बोला यार मैंने। तो वैसा एक फील आता है। तो जब भी मैं बोल रहा हूं कि यू नो व्हाट, आई एम हियर बिकॉज आई हैव बीन डायग्नोज्ड विद गैस्ट्राइटिस, तो आपका रिस्पॉन्स होना चाहिए, ओ
आई एम वेरी सॉरी टू हियर दैट यू हैव बीन डायग्नोज्ड विद गैस्ट्राइटिस. किसी को एक डायग्नोसिस हो रहा है, किसी का हेल्थ इश्यूज है, तो आप अच्छा फील करोगे या बुरा फील करोगे उस पेशेंट के लिए? बिल्कुल सर, बुरा. बुरा ही फील करेंगे। तो आप क्या बोलोगे? आई एम वेरी सॉरी टू हियर दैट मिस्टर अखिल. सर, बिल्कुल। बट अगर जब एक देखो, आप क्या है, आप बात नहीं कर रहे हो. आपका प्रॉब्लम वही है कि आप बात ही नहीं कर रहे हो, और ओईटी स्पीकिंग में स्पीकिंग ही करना है. जब आपसे मैं अगर बोलूंगा कि भाई मेरा पेट में कुछ दिक्कत हो गया, मुझे गैस्ट्राइटिस हुआ है, और आप एक नर्स हो, तो आप मुझे क्या बोलोगे? अरे कोई बात नहीं भाई, मुझे सुन के काफी दुख लगा, लेकिन टेंशन मत लो यार, सब ठीक हो जाएगा. या आप बोलोगे क्या नहीं बोलोगे? बिल्कुल बिल्कुल। आपने यहाँ पे वो बोला नो सर। नहीं. आई एम वेरी सॉरी टू हियर दैट मिस्टर अखिल, बट डोंट वरी, वी आर हियर टू हेल्प यू आउट एंड यू विल बी कंप्लीटली ऑल राइट. बस. ये पहाड़ तोड़ने वाला कुछ नहीं था, लेकिन एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. अगर कुछ पेशेंट कुछ बोलता है तो उसको कैसे रेस्पॉन्ड करना है हमें आना चाहिए. जब पेशेंट कुछ अच्छी चीज के बारे में बोल रहा है तो उसके लिए कैसे रेस्पॉन्ड करना है. जब पेशेंट अपना कोई डिजीज कंडीशन के बारे में बोल रहा है तो कैसे हमें रेस्पॉन्ड करना है, ये हमें पता होना चाहिए. ठीक है. उसके बाद आप बिना ये सब कुछ पूछे, गैस्ट्राइटिस के बाद डायरेक्ट आपने पूछा टेल मी अबाउट योर फैमिली. तो सबसे पहले तो आपने मुझे एक्नॉलेज ही नहीं किया कि मुझे गैस्ट्राइटिस हुआ है, आप उसके लिए सॉरी फील कर रहे हो और मैं ठीक हो जाऊंगा, कुछ एंकरेजमेंट नहीं दिया आपने, और आप डायरेक्ट चले गए फैमिली के बारे में पूछो. अब क्यों फैमिली के बारे में पूछ रही हो ये भी मुझे नहीं बोला आपने, और आपने मुझसे परमिशन भी नहीं लिया. कैन यू प्लीज टेल मी इफ यू डोंट माइंड, कैन आई आस्क यू सम क्वेश्चंस. पहले आप परमिशन लेना है आपको पेशेंट से कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं कुछ क्वेश्चन पूछूं आपसे. जैसे ही पेशेंट बोलेगा यस, उसके बाद आप पूछ सकते हो कि कैन यू प्लीज टेल मी अबाउट योर फैमिली. डू यू हैव एनी किड्स, आर यू मैरिड, कैन यू प्लीज टेल मी समथिंग अबाउट दैट. अब वैसे आपको पूछना है. जैसे आप वो बोल लोगे, उसके बाद आपको, जैसे पेशेंट बोलेगा उनका 3 किड है, 3 बच्चा है, तब आपको बोलना है ओ आई एम वेरी हैप्पी टू हियर दैट. तो आपको बात करना है पेशेंट से. आप अपना टास्क मत खत्म कीजिए, टास्क के पीछे मत पड़िए. जब आप एक बात कर रहे हो, एक हिंदी में अगर एक पेशेंट आपको आके बोलेगा अरे मेरा 3 बेटी है, तो आप क्या बोलोगे? हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, अरे यार अच्छी बात है, क्या कर रहे हैं उन लोग, पूछोगे ना आप. तो आपको यहाँ पूछना नहीं है क्या कर रहे हो एंड ऑल, लेकिन एटलीस्ट बोलना है ना, ओ बहुत अच्छी बात है, आई एम सो हैप्पी टू हियर दैट यू हैव ए लविंग फैमिली. तो वो करके आपको फिर आगे जाना है. जब आप पूछ रहे हो कि हैबिट्स के बारे में, तो क्या हैबिट के बारे में आप पूछ रहे हो, आप स्पेसिफिकली पूछो. दैट्स परफेक्टली फाइन. जैसे आप कुछ बोल रहा है कि मेरा फैमिली है, मेरे घर पे 3 बच्चे हैं और मैं अपनी वाइफ के साथ रहता हूं, बोलना दैट्स ऑल राइट. नाउ इफ यू डोंट माइंड, कैन आई आस्क यू सम क्वेश्चंस रिगार्डिंग योर हैबिट फॉर द लाइक्स ऑफ योर स्मोकिंग हैबिट्स और योर ड्रिंकिंग हैबिट्स, बिकॉज दैट विल हेल्प टू अंडरस्टैंड योर सिचुएशन मच बेटर. अब आप पूछ भी रहे हो कि मैं क्या क्वेश्चन पूछूं आपसे, परमिशन भी ले रहे हो, एट द सेम टाइम आप पेशेंट को बोल भी रहे हो कि आप ये क्वेश्चंस क्यों पूछ रहे हो. मैं आपसे इसीलिए ये सब क्वेश्चन पूछ रहा हूं ताकि आपके बारे में मुझे ज्यादा समझ में आए, और जैसे ही आपके बारे में ज्यादा समझ में आएगा मैं आपको ज्यादा हेल्प कर पाऊंगा, है कि नहीं. तो वो चीज आपको पेशेंट को बताना है. पेशेंट सोचेगा कि आप क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो. तो हमेशा पेशेंट को एक कॉन्टेक्स्ट दो कि आई एम गोना आस्क यू सम क्वेश्चंस because that is going to help me to understand your situation much better, and that will help me to give you some good advices as well. So if you don't mind, may I ask you some questions. अब पेशेंट क्लियर है कि आप क्यों क्वेश्चन पूछ रहे हो उससे. ठीक है. उसके बाद आप पूछो कि डू यू स्मोक. पेशेंट बोलता है नो आई डोंट स्मोक. बोलो दैट्स वेरी गुड दैट यू डोंट स्मोक. व्हाट अबाउट योर ड्रिंकिंग हैबिट्स मिस्टर अखिल. पेशेंट बोलेगा कि आई ड्रिंक एवरी डे. ओह ओके. आप जज नहीं कर सकते हो कि ओ नो दैट इज वेरी बैड, नहीं बोल सकते हो. अगर कुछ अच्छा है तो आप डेफिनेटली अच्छा है बोल सकते हो, लेकिन कोई भी चीज को आपको बुरा है नहीं बोलना है. तो आप क्या बोल सकते हो? ओके दैट्स फाइन. एंड जब पेशेंट बोलता है कि वो रोज ड्रिंक करता है, जब भी ऐसा एक हैबिट के बारे में पेशेंट बोल रहा है, तो आपको क्वेश्चन पूछना है कि हाउ ऑफन डू यू ड्रिंक. कितना कितना लगातार कितना पीते हो, मतलब कितना, एक मतलब हाउ ऑफन, कब कब पीते हो आप. तो बोलेगा आई ड्रिंक डेली. बोला ओके दैट्स कंप्लीटली फाइन. मे नो हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ एल्कोहल डू यू ड्रिंक. जब आप अल्कोहल पीते हो तो कितना यूनिट पीते हो.
ताकि आपको समझ में आएगा ना कि एडवाइस कैसे देना है। जब आपको पता ही नहीं है पेशेंट कितना पीता है, 1 बोतल पीता है, 2 बोतल पीता है या 10 बोतल पीता है, आपको पता ही नहीं है, तो आपको समझ में कैसे आएगा कि पेशेंट को आपको एडवाइस कैसा देना है। जो पेशेंट थोड़ी सी थोड़ा सा क्या सपोज क्या बोलते हैं, थोड़ा सा 10 मील मारता हो सपोज रात में हर दिन, उसको आप बोल सकते हो, आपको पता ही नहीं है कि वो 10 मील मारता है, लेकिन वो है मारता है 10 मील बस, लेकिन आप उसको बोल रहे हो कि ठीक है तुम एटलीस्ट 1 बोतल ही पीना, उससे ज्यादा मत पीना। लेकिन वो बोलेगा अरे मैं तो 10 ही पीता था, ये बोल रहा है 1 बोतल पीने के लिए। लेकिन अगर वही पेशेंट आपको बोलता है कि मैं 3 बोतलें पीता हूं, तो उसको तो आप बोल सकते हो ना कि एटलीस्ट 1 बोतल पे कम करो, पहले धीरे धीरे कम करो, आप बोल सकते हो ना। तो ये आप कब बोलोगे? जब आपको पता होगा कि पेशेंट कितना पीता है। जब आपको पता ही नहीं है तो आप एडवाइस क्या दोगे? कुछ दोगे ही नहीं। इसीलिए आप कुछ मुझे बोल ही नहीं पाए, क्योंकि आपको कुछ पता ही नहीं है क्या बोलना है। तो जब पेशेंट से आपसे पूछो हाउ ऑफन डू यू ड्रिंक, उसके बाद पेशेंट बोलता है डेली, ओके मे आई नो हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ अल्कोहल डू यू ड्रिंक ऑन ए डे, इन ए डे। तो पेशेंट बोलेगा कि आई ड्रिंक 3 ग्लासेस और 4 ग्लासेस एवरी डे। बोलना ओके, ओके थैंक यू फॉर गिविंग आंसर्स टू माई क्वेश्चंस, but Mr. Akhil, I think that drinking a lot of alcohol is causing you gastritis. अब तुम लिंक करो, पेशेंट ने अपना हिस्ट्री दे दिया और तुम्हें पता है पेशेंट का डायग्नोसिस क्या है, इस दोनों को लिंक कर दो। आप बोलो कि तुम ज्यादा पीते हो इसीलिए शायद तुम्हें गैस्ट्राइटिस हो रहा है। तो अगर तुम्हें गैस्ट्राइटिस से बचना है तो तुम्हें अपना ड्रिंकिंग को कम करना पड़ेगा। यही आपको एक्सप्लेन करना है कि मिस्टर अखिल, बाय what information what you have given so far, I can understand that drinking alcohol is causing you gastritis. So if you can try to reduce your drinking habits, I think you will feel much better. ये कोई डिफिकल्ट इंग्लिश मैंने बोला क्या? अगर आप अपना अगर आप अपना ड्रिंकिंग थोड़ा रिड्यूस करोगे तो आपको आपका गैस्ट्राइटिस ठीक होगा, या आप बोल सकते हो कि आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। उसके बाद पेशेंट आपसे पूछेगा कि मुझे स्मोकिंग मतलब ड्रिंकिंग छोड़ने के लिए क्या क्या एडवाइस दोगे आप। तो बोलो उसको कि अभी आपने बोला कि आप 4 ग्लास पीते हो, आपको ग्रेजुअली कम करना है। आप उसको पहले 3 ग्लास में कर दो, फिर आप उसको 2 ग्लास में लाओ, फिर आप उसको 1 ग्लास में लाओ। तो आप क्या बोलोगे? मिस्टर अखिल, I appreciate that you're wanting to decrease your alcohol consumption, or you want to reduce your alcohol consumption, but please do it slowly. You can take your time. Initially you can cut down your drinking habits by 3 glasses a day, and then 2 glasses, and so on. तो आप बोलो कि धीरे धीरे कम करो, लेकिन कम करने का कोशिश करो, क्योंकि if you don't completely reduce, or if you don't reduce, or if you don't completely quit your drinking habits, this may lead to a serious problem in the coming future. आप पेशेंट को आप समझा भी रहे हो कि अगर आप ये अभी छोड़ोगे नहीं, या अगर आप अपना ड्रिंकिंग कम नहीं करोगे, तो हो सकता है कि फ्यूचर में आपको ज्यादा दिक्कतें हो। तो ये बोलोगे। उसके बाद पेशेंट बोलेगा ओके आई विल ट्राई दैट। तो आप रिड्यूस ये करने के लिए बोले। पेशेंट को बोलो कि आप कौन सा टाइप का मील प्रेफर करते हो, हेल्दी न्यूट्रिशियस फूड खाने के लिए बोलो पेशेंट को। ठीक है, पेशेंट को बोलो थोड़ा एक्सरसाइज करना पसंद है या नहीं, डू यू लाइक एक्सरसाइजिंग, डू यू लाइक वॉकिंग, और डू यू लाइक एनी फिजिकल एक्टिविटीज, डू यू लाइक एनी स्पोर्ट्स, ताकि उनको स्पोर्ट्स में एंगेज रहने के लिए बोलो। ठीक है, जब भी कोई डिस्ट्रैक्शन आप पूछ रहे हो, तो सबसे बड़ा पॉइंट डिस्ट्रैक्शन नहीं है, सबसे पहला पॉइंट है कि उसको अल्कोहल कंजप्शन कम करना है। पहले वो कम करो, उसके बाद आप डिस्ट्रैक्शन मेथड के बारे में बात करोगे कि ठीक है, जब भी आपको अर्ज आ जाता है तब आप क्या करो, अपने आप को आपके फेवरेट एक्टिविटीज में इंडल्ज करिए। तो पेशेंट से पूछिए कि व्हाट डू यू लाइक, डू यू लाइक वॉकिंग, डू यू लाइक कुकिंग, व्हाट आर योर इंटरेस्ट, व्हाट इज योर हॉबीज, व्हाट डू यू एंजॉय डूइंग। तब पेशेंट बोलेगा आई एंजॉय रीडिंग, आई एंजॉय प्लेइंग फुटबॉल, आई एंजॉय वॉचिंग क्रिकेट, और आई एंजॉय वॉचिंग सीरीज, कुछ भी बोलेगा। तब बोलना ओके, सो दैट्स रियली गुड। So whenever you feel the urge to drink alcohol, please indulge yourself into those activities like watching series or playing cricket. जो भी पेशेंट ने बोला जब भी तुम्हें मन करता है तब अपने आप को उस चीज में एंगेज कर दो। Engage yourself into activities which you like, and this is called distraction method,
and I am very sure that this will help you to quit your smoking. Sorry, ड्रिंकिंग. मैं स्मोकिंग बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इससे पहले जिससे स्पीकिंग किया था उनके साथ मैंने स्मोकिंग सेशन किया है, तो बार बार मेरे मुंह से स्मोकिंग निकल रहा है इसीलिए, ठीक है. लेकिन स्मोकिंग के लिए भी सेम ही यूज करोगे आप, ड्रिंकिंग के लिए ड्रिंकिंग बस बदल दोगे, ठीक है. ये सब बोलने के बाद आप बीच बीच में क्या है ना, रुक जाते हो कंप्लीटली. एक सेकेंड से ज्यादा आपको रुक नहीं सकते हो आप. एक सेकेंड से ज्यादा अगर आप पॉज देते हो, इसका मतलब आप फ्लुएंटली बात नहीं कर रहे हो. तो आपको पहले से ही पता होना चाहिए स्टार्टिंग से लेके एंड तक कि आप क्या क्या बात करने जा रहे हो, ठीक है. उसके बाद ग्रामर में भी काफी गलतियां हैं, ठीक है. तो ग्रामर भी आपको इंप्रूव करना पड़ेगा. एट द सेम टाइम आपको क्वेश्चंस पूछना है आपको बहुत सारे, और क्वेश्चन पूछने के बाद जो भी आंसर दे रहा है पेशेंट, उसका अप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स देना सीखना है आपको. पेशेंट ने अल्कोहल के बारे में बोला, हाँ ठीक है, अगला क्वेश्चन नहीं, पहले उसको एक रेस्पॉन्ड करो कि ओके थैंक यू फॉर गिविंग द आंसर, थैंक यू फॉर लेटिंग मी नो. अगर पेशेंट ने कुछ अच्छा चीज बोला है तो बोलो आई एम सो हैप्पी टू हियर दैट. पेशेंट ने कुछ ऐसा चीज बोला है जो मतलब दुखद है उसके लिए, उसकी मां गुजर गई, ऐसा कुछ हुआ है, ओ आई एम वेरी सॉरी टू हियर दैट मिस्टर अखिल. पेशेंट बोल रहा है कि बहुत कंसर्न है अल्कोहल, उसका तबीयत बहुत खराब है, उसको बोलो आई कैन टोटली अंडरस्टैंड योर कंसर्न मिस्टर अखिल, बट डोंट वरी आई एम हियर टू हेल्प यू. सो आप क्या बात करने जा रहे हो उस पर आपको मार्क्स मिलते हैं. तो ओवरऑल मैं बोलूंगा कि बहुत जगह इंप्रूवमेंट की जरूरत है. प्रॉब्लम है कि आपको किसी ने सिखाया नहीं, ठीक है. आपको किसी ने सिखाया नहीं कि स्पीकिंग करना कैसे. प्रॉब्लम वहीं पे है, और आपको बहुत सीखने की जरूरत होगी क्योंकि आप बोलने के लिए रेडी हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या बोलना है. तो आपको क्या क्या बोलना है वो अगर पता चल जाएगा तो मेरे ख्याल से आप एटलीस्ट बोलने का कोशिश करोगे और आप इंप्रूव करोगे. आपको क्या बोलना है वही आइडिया नहीं है तो आप बोलोगे ही कैसे. कितना भी कोशिश करोगे तो कैसे बोलोगे जब पता ही नहीं है कि ऐसा एक सेंटेंस बोलना है या बोल सकते हैं. जब तक आपको पता नहीं चलेगा तो आप बोलोगे नहीं, ठीक है. तो डेफिनेटली आपको वो सब सीखना है, ठीक है. वो सब सीख के बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने पे मैं बोल सकता हूं कि आप काफी इंप्रूव करोगे. लेकिन अभी गलती से भी एग्जाम वगैरह बुक मत करिएगा, बेफालतू का पैसा बर्बाद होगा, ठीक है. बहुत ज्यादा प्रिपरेशन का जरूरत है, और यही मैं बोलूंगा कि काफी प्रैक्टिस की जरूरत है और बहुत मेहनत करना पड़ेगा. और डेफिनेटली देखो, ये आपका वीडियो ऐसा करके बहुत लोग के साथ मैं स्पीकिंग करूंगा, बहुत लोग का वीडियो है, उससे आप बहुत सीखोगे. जो लोग बात कर रहेगा इससे पहले, या आप देखोगे किसी और का वीडियो मेरे साथ, तो आप देखोगे ना वो क्या बात कर रहा है, उससे भी आप सीख सकते हो कि अच्छा उसने ऐसे बोला इस लड़की ने, तो मैं वो लिख लेता हूं, मैं भी ऐसा बोलूंगा ऐसा सिचुएशन आने पर. तो आपको सीखने का वॉलंटरली इफेक्ट देना पड़ेगा. जब तक आप खुद से सीखने के लिए रेडी नहीं हो पाओगे बहुत काफी मुश्किल होगा. लेकिन एटलीस्ट आप में हिम्मत है स्पीकिंग करने की, जो कि बहुत बड़ी बात है, जो कि बहुत लोग में तो है ही नहीं. तो आप ऑलरेडी वो जंग तो जीत चुके हो. लेकिन अब दूसरी जंग है जहां पे आपको सीखना है कि आपको अपने हथियार कैसे चलाने, ठीक है. और राजस्थान से हो, बहुत बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत बढ़िया लोग हैं उधर के, ठीक है. किसी के बहकावे में मत आना बस, ठीक है. नहीं. दुनिया बहुत आपको यूट्यूब में बहुत सपने दिखाते हैं लोग, ठीक है. सपने कैसे पाना है वो नहीं दिखाएंगे कोई, ठीक है. सपने दिखाएंगे बस. तो सपनों को जो कैसे अचीव करना है उस पे ज्यादा ध्यान दीजिए, सपने अपने आप मिल जाएंगे आपको, ठीक है. बिल्कुल. और मेहनत कीजिए, कोशिश करते रहिए ऐसे ही, डेफिनेटली आप भी इंप्रूव करोगे, ठीक है. होपफुली आपको थोड़ा सा हेल्प मिला, ठीक है. मुझे पता है ज्यादा तो हेल्प नहीं कर पाया मैं, एटलीस्ट आपको मैं थोड़ा मोड़ा आपको बता पाया हूँ, जो मुझे नहीं लगता है कि आपको आज तक किसी ने इतना डीपली कोई बताया होगा जैसे भी. बिल्कुल सही बात है सर. ओके. तो वन ऑन वन अंकित जी ऐसे ही हम थोड़ा वो रहता है ना. वन ऑन वन अगर स्टूडेंट है तो हम आपस में कैसे कर पाएंगे उस चीज को. हमारे साथ कोई हमारे से मतलब ऐसा हो जो एक्सपर्ट नहीं, हो. आपका टीचर ही होना चाहिए. हमारे कोचिंग में जैसे हम डेली स्पीकिंग करते हैं ऐसे करके, जैसे हम कर रहे हैं ना, हमारे बच्चों के साथ हम 2 महीने का कोचिंग होता है तो हम 60 दिन करते हैं उनके साथ स्पीकिंग. तो 60 स्पीकिंग का एक्सपीरियंस है. सोचो ऐसे आपके साथ 60 दिन होगा तो कैसा होगा आपके साथ. ये तो एक दिन है ना, अगर ऐसा 60 दिन होगा तो हम तो ऐसे ही करते हैं. लेकिन लोगों का अपना अपना तरीका है पढ़ाने का, लिखाने का, तो इसमें हमें कोई कमेंट दे के फायदा है नहीं. और लेकिन जो भी है, अभी आपका कोचिंग भी खत्म हो गया है, लेकिन हाल बहुत ही बेकार है. तो आपको खुद से अपने आप को उठाना पड़ेगा उस लेवल में आने के लिए.
और उसके लिए आपको आप ही हो जो आप अपनी खुद की मदद कर सकते हो। ठीक है चलो सर। ठीक है फिर। ओके 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 सर, थैंक यू सर। ओके ओके नो प्रॉब्लम डियर ओके।